तो वो उसमें 2 ऑप्शन क्लोज थे। हाँ वो थे, बट इसके अलावा मुझे नहीं लगा कि कोई भी ऑप्शन क्लोज था पूरे पेपर। राइट राइट राइट। बाकी आई फेल्ट द ऑप्शंस दे लुक्ड स्कैरी कि बहुत मतलब ऐसे बड़े बड़े टाइप के ऑप्शन थे, बट इफ यू रीड देम ना दे मतलब यू कुड एलिमिनेट द ऑप्शंस इज व्हाट आई फेल्ट कि यस हाँ ठीक है, इट वाज अंडरस्टैंडेबल कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. Yes. So ma'am, I think like one thing which we can do is like, because mock analysis mein, I have done 15 mocks, I guess. Prantik sir has done 15 mocks roughly. When I used to LRDI in this VARC, तो उसमें जब मैंने VARC कराया है, मैंने कई बार RCs के I have actually solved it that for example, if you're solving one RC, then we have like 2 passages or 3 passages. We can give title to those passages, and we need to understand what is the storyline, right? Once we understand the storyline, then I think it becomes easier for us to eventually go through the questions. And then we completely forget about direct and indirect. We can directly solve it, right? And I think that happened today. If you see, if we were able to understand the RC, then for us the questions were not direct indirect. It was like we know a question is there and we can actually solve it. So wahi same thought process pe we have done in mocks also. And Prantik sir is also there. Hey, hi Prantik sir. Prantik sir, camera on kar lenge aap? Hi sir. I'll good to see you, Nihit, man. Good to see you. Hi sir. Hello sir. Hey, hi. Good job, Nihid. Thank you. DILR mein I was a little not very confident when I was attempting, because I attempted 2 sets and the thing was that if I would have done those 2 sets एकदम श्योर शॉट ना कि हाँ चलो पहले एक सेट ये हुआ, एक सेट ये हुआ, चलो तीसरा कर रहे हैं, नहीं हुआ कोई बात नहीं, तो फिर थोड़ा बेटर स्टेट होता कि हाँ ठीक है सबका ही 2-2 सब करके आ रहे हैं, ठीक होता. बट मैं थोड़ा पैनिक में आ गया था कि Correct. I think just before that, can we talk about VA also एक बार? हाँ जी हाँ वो रहेगा हमारा. So we'll come to that. Sorry for that, right? मैं देख रहा था screen पे that we were talking about VA. So you have like you want to say something about VA, Sagar and Nihit? Yes, sir. I think VA very parajumble surprise था, but it was not something which was very difficult. I mean, मैंने 4 options देखे तो I was surprised. I was like VA ही होगा, मतलब पैराजम्बल ही होगा. एंड फिर मैंने वापस देखा कि वो 5 क्वेश्चन वाले में से कोई पैराजम्बल तो नहीं था, मतलब ऑड एंड आउट ही था कि नहीं, बिकॉज हो सकता है. आई मीन पहले मैंने ढंग से देखा नहीं था, बट आई थिंक पैराजम्बल वाज एक तो इजी था और दूसरा तो आई थिंक मैंने तुक्का ही मारा है, मतलब स्मार्ट गेस जिसको हम बोल दे, बट एक तो काफी इजी लगा मुझे. एंड ऑड एंड आउट वाज आल्सो इजी, मतलब उसको सरप्राइज नहीं था. पैरा समरी आई फील इट वाज लेंदी, मतलब थोड़ा टाइम लग रहा था सेंटेंस पढ़ने में, एंड ऑब्वियसली ऑप्शन भी लंबे थे, तो आई थिंक इट वाज लेंदी बट नॉट वेरी डिफिकल्ट. बट आई थिंक आरसी वाज मोर इजी. आई थिंक एक्यूरेसी को लेके मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ आरसीज को लेके. I felt now all the VAs 2 each थे सबके. Yes. One of each topic was very straightforward. And the other one required some thinking, but that was also easy. It was not ऐसे बहुत difficult, बहुत close ऐसा भी नहीं है. वही लेंदी था बस. वैसा था. RCs का वही as we talked, like they were lengthy to read, ये सब था, but options वगैरह it was fair enough. मतलब VARC overall I felt कि it was मतलब it was slightly on the easier side, थोड़ा ऐसे doable भी था and understandable भी था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो बन जा रहे थे. बहुत थॉट नहीं लगाना पड़ रहा था कि अच्छा इसमें ये इंटरप्रिटेशन है, इसका ये मतलब है. But I think it's not possible to solve 24 questions. मतलब मुझे नहीं लगता वो possible है. I mean, it's very difficult. If the RCs were lengthier or all that stuff, then I think 24 is not something which everyone can do, right? So, but ऐसा हुआ है पहले भी ARC में कि 24 किए हैं attempt लोगों ने, but not today, right? So accuracy में गिर जाएगी अगर 24 attempt जाएगा. Yes. Okay, I think VA के बारे में from ma'am, from mock we also have to tell like how we have done VARC. Yeah, like if you found some of the passage or questions similar to the mock. तो ये तो difficult है बताना. Prantik sir, you can tell with respect to VARC something similar in mock, because I think the topics were pretty much different, right? So yeah. VARC I cannot, but ma'am, I recorded a video 2 दिन पहले about that spider graph. Yeah. And there was that spider graph in the slot 1 along combined with a bar graph. Yes. Yes. So those similar things from the books, the mocks, that will be helpful.
Yes, ma'am. So DLR में, I think like we have a lot of instances wherein Prantik sir has told something and I have told something. वो आया हुआ है, definitely it's there. When it comes to VARC, sir, you what's what? Yeah, I don't know. Hey guys, hi Nihit, कैसा रहा यार? सागर कैसा रहा? गुड आफ्टरनून सर. Hi afternoon. पहाड़ के आए हो कि नहीं? हाँ सर, VRC तो बहुत अच्छा गया है. DLR थोड़ा सा तो खराब हुआ ही है. मतलब आई थिंक डिफिकल्ट था DLR. कौन सा वाला किया तूने? वो टैप्स वाला कर लिया? सर मैंने बार चार्ट वाला किया था और टीम्स वाला किया था पहले, जिसमें वो रेडार वाला, टेरिफ्स वाला? वो तो किया ही था सर, टेरिफ वाला तो. और उसके अलावा मैंने वो बंटी चिंटू वाला जो क्वेश्चन था जिसमें 2 टीम्स थी, जिसमें जो हाईएस्ट स्कोर कर रहा था वो दूसरी टीम में जा रहा था, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन वाला. हाँ. 3 लोग थे. ये इजी था, ये इजी लगा मुझे. एंड जो सर्कुलर अरेंजमेंट वाला था वो मैंने आधा किया, सो आई अटेम्प्टेड 2.5. ठीक है. तो एक तूने रेडार चार्ट और बार ग्राफ वाला किया, इंपोर्ट से टेरिफ वाला, और दूसरा रेटिंग वाला किया है ना? हाँ, रेटिंग वाला सर इजी था बिकॉज उसमें बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ रहा था. सर वही मैंने तो इसी मैसेज ठीक है. अंडरस्टूड. तेरा सागर, हाउ अबाउट यू? सर मैंने वही पहले वो ग्राफ वाला किया, स्पाइडर और वो वाला. वो मैंने एक्चुअली स्टार्ट उससे नहीं किया था. मैंने पहले जो एक वो सेट था कि जो टैप्स वाले थे कि यस पे 1 टैप, नो पे 2 टैप, 3 टैप वाला एक वो सेट था. टैप 5 लोग. हाँ 5 लोग वाला वो मैंने स्टार्ट किया. तो वो मैं सही ट्रैक पे जा रहा था. जाते थोड़ा मेरा उसमें फिर मेरे को वही टाइम बढ़ते हुए दिखा, तो मेरे को लगा कि हो रहा है नहीं हो रहा. इट लुक्ड वेरी स्कैरी बट इट वाज बहुत दिमाग नहीं लगाना था उस पर. वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही था काफी कुछ. रीडिंग थोड़ा हैवी था बट ऑप्शन एलिमिनेशन वगैरह इजी था. ऑप्शन एलिमिनेशन तो एक तो वो था इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक वाला किया. यस सर. क्रिमिनल जुडिशरी वाला किया. यस. ठीक है. और एक तो फिजिक्स वाला था और एक चौथा आरसी पता नहीं कौन सा. इकोनॉमिक्स वाला, इनकम इक्वालिटी वाला. हाँ वो इनइक्वालिटी वाला करेक्ट. सबसे इजी कौन सा था इसमें आरसी? सर मेरे को इनकम इनइक्वालिटी वाला ही लगा बिकॉज मैं खुद इकोनॉमिक ऑनर्स किया है मैंने, तो वो थोड़ा उसका एक्चुअली मतलब उसी का था कि बहुत लेंथी ऑप्शंस थे बट एलिमिनेट हो रहे थे सारे. हाँ सर. उसका था वो समझने में भी इजी था. 2 बड़े पैराग्राफ थे एंड एक में एक पॉइंट ऑफ व्यू बोला, दूसरे में दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू बोला. वो समझने में भी स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि ऐसा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लाइक जो डेटा की इंफॉर्मेशन थी, दैट वाज वेरी एक्स्ट्रा एंड लाइक इट वाज थिंग व्हिच वाज रिक्वायर्ड, राइट? उसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन करके उसने थोड़ा लेंथी कर दिया था. अंडरस्टूड. और पैरा समरी, पैरा जंबल, पैरा कंप्लीशन सब रूल लग गए थे. हाँ रूल सर सब में लगे थे, सारे के सारे जितने जो भी वीए बोलो बेसिकली. वही पैरा कंप्लीशन में स्पेशली वो था कि फिट फ्लो फिट वगैरह जो आप अरे याद है ना, वो सारे सब याद है मेरे को सारे एकदम. तो वो सारे उसमें लग गए थे. ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वगैरह बाकी सब लग गया था. मैंने पैरा समरी नहीं किया. वो मैंने थोड़ा स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया था कि कम टाइम बचा, एक एक्स्ट्रा आरसी करूं या फिर पैरा समरी करूं. तो मैं एक एक्स्ट्रा आरसी के लिए गया मैं. बट बाकी जितने भी है मैं वही साहिल सर को बता रहा था कि जो 2 क्वेश्चन थे, एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था, एक थोड़ा दिमाग लगाना था बट बन गया था ऐसा कुछ. मतलब बहुत हैवी थिंकिंग वाला नहीं था. बढ़िया. तो आरसी सारे कर लिए तूने? नहीं 3 आरसी के. 3 आरसी और 5 वीए. मैंने भी 3 आरसी किए और 4 वीए किए. मतलब एक आरसी में मैंने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया था. हाँ, वो मुझे वो एनो जेनेरिक करके कोई वर्ड था, आई थिंक उसका ऑपोजिट था कि उसका कुछ सिमिलर मीनिंग पूछा था, तो उसमें मैं कंफ्यूज था. मैंने कहा छोड़ो अटेम्प्ट ना करो, बेटर है, कुछ आइडिया है नहीं इस चीज का. दैट वाज इन म्यूजिक, राइट? हाँ या म्यूजिक वाले में आरसी था वो क्वेश्चन था, वो तो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था. एंड एनो का मतलब कहाँ होता है? जेनरिक का मतलब जेनरिक होता है. It was not एनो जेनरिक, it was some other word, but yes. सिस जेनरिक कुछ तो था. CU जेनरिक ऐसा ही यूज किया. हाँ CU जेनरिक था. CU जेनरिक. ओके. और ये मतलब इजीएस्ट कौन सा आरसी लगा तुम्हें? ये वाला, ये इनकम इनइक्वालिटी वाला वाला? और क्वेश्चंस कैसे थे? वो इन्फ्रेंस बेस्ड कुछ था, एक्सेप्ट कुछ था? नहीं, इन्फ्रेंस तो मुझे कम लगा. मुझे बहुत ज्यादा काफी एम्बिगुअस था ही नहीं, कुछ एम्बिगुअस नहीं था आरसीज में. तो वाह, मतलब VA was more difficult than RC, I feel. अच्छा, VA was more difficult. और RC में वो सब कुछ नहीं, नॉन नेगेटिव ये सब बहुत कम. खाली एक वो वही जो अभी साहिल सर बता रहे थे कि जो वो डेमोक्रेसी ना किसका जो ऑपोजिट एक
वो बोला हाँ। था, इसके अलावा वो भी इजी था एलिमिनेट हाँ, करना. वो भी इजी था Correct. एलिमिनेट That was like a different scenario was given to, like, you know. हाँ सिचुएशन वगैरह थे, बट वो भी समझ में आ रहा था कि ये रिलेटेड ही नहीं है, ये है ऐसा. मतलब वही था, डिक्टेटरशिप टाइप का कुछ अटेम्प्ट करना था, उसमें चूज करना था और कुछ था नहीं. मतलब सही है. मतलब वर्बल तो फाड़ाफाड़ी मचाई तुमने, ठीक. और पैराजम्बल पैरासमरी भी डायरेक्ट कुछ टॉपिक वॉपिक कुछ कराए हुए कुछ आया था. मतलब जिसने एऑन पढ़ा हुआ वो कर लेगा. यस सर. हाँ सर, एऑन का मतलब मैं पर्सनली ये वाउच करता हूँ कि मैंने बहुत पढ़ा है. मैंने एऑन सितंबर अक्टूबर तक पढ़ा, उसके बाद मैं नहीं पढ़ा था. एऑन से मेरे को उस टाइम पे मेरे को बेनिफिट दिखा था कि मेरा रीडिंग स्पीड बढ़ गया था. मैं 2 से 3 आरसी कर पाता था क्योंकि रीडिंग स्पीड बढ़ गया था, कॉन्फिडेंस आने लगा था मेरे को, वो थोड़ा हो गया था. तो ये वो बेनिफिट उससे रहता है, मतलब अंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि लैंग्वेज एकदम ही सिंपल नहीं था, अंडरस्टैंडेबल था, बट वही है कि जो फ्लुएंट है वो पढ़ लेगा, वो 3 अटेम्प्ट कर सकता है. अंडरस्टूड. सही है. चलो बढ़िया. ये तो अच्छा करके आए हो तुम. बढ़िया है. गुड. और टॉपिक वाइज ऐसे ही कुछ फिजिक्स वाला कैसा आरसी वो किया, नेचर ऑफ फिजिक्स? नहीं सर, वो अटेम्प्ट नहीं किया. किसी ने भी नहीं किया. ये डिफिकल्ट लग रहा है ना. हाँ. इनइक्वालिटी और क्रिमिनल जुडिशरी मैडनेस वाला हो गया और आराम से बन गया. वो भी इजी था सर. मतलब कोई इन्फ्रेंस नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा फैक्ट बेस्ड टाइप्स. बस लेंदी था सर, और कुछ नहीं. फैक्ट बेस्ड मतलब not exactly fact based. I'll tell you like what sort of categorization. So like which of the following is true except this was like one question I remember. जो आपने बोला कि which of the following is opposite to democracy, right? There they gave 4 external situations which were not a part of the passage, right? तो हमको स्नैप करना था कि context of the passage को use करके कि ये चारों में से कौन सा opposite हो सकता है, right? These sort of questions were there, but there was nothing like all of the following are false except you are double negative and all that. वो सब खत्म था इस बार, ऐसा नहीं कुछ. सर आई थिंक इन्फ्रेंस बेस्ड था, बट ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत इजी था. मतलब क्लोज ऑप्शंस नहीं थे. एक वो 3 एलिमिनेट हो रहे थे बहुत जगह. 3 ऑथर बेस्ड क्वेश्चन था जिसमें आई थिंक वी डिस्कस्ड कि ऑथर ऑप्शन एलिमिनेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट था कि इट वाज ट्रेडिशनल म्यूजिक वाले में कि व्हाट हैज ऑथर ट्राइड टू से, राइट? वहां पे एक था डिफेंड कर रहा है वो म्यूजिक को या आर्गुमेंट क्रिएट कर रहा है, सॉर्ट ऑफ दैट क्वेश्चन. अंडरस्टूड. बढ़िया. चलो मतलब मेरा पढ़ाई वाला बच्चा जिसे सिंसियरली पढ़ा वो कर लेगा ना. यस सर. चलो गुड. सही है. Hi, Syed. Sir, Syed is also one of the students. हे सईद, कैसा है? हेलो सर, बढ़िया. आप बताइए. गुड. कैसा गया पेपर? ठीक ठाक गया सर, तो वाव नहीं गया, बट देखते हैं. अच्छा, क्या वाव नहीं गया? डीएलआर में कितने सेट किए? डीएलआर में 2.5. थोड़े बेटर. डीएलआर वैसे कैसा था? आई थॉट 24 जैसा तो नहीं था बिल्कुल भी, मे बी 23 लेवल का. आपके हिसाब से आपको कैसा लगा? या मतलब बेस्ड ऑन द एनालिसिस सो फार इट्स ऑन द टफर साइड. इट वाज लेंथियर. मतलब सही चार्ट पकड़ ली तो बढ़िया. वो 40 टैप्स वाला कई लोगों ने कर लिया, और वो डिस्ट्रीब्यूशन जो 6 लोग थे जिसको रेटिंग में एक से दूसरे में शिफ्ट करना है, वो वाला. ये दो इजी लगे. सर्कुलर अरेंजमेंट लोगों को मुश्किल लगा, वो लोग बैठे हुए थे. और फिर कई लोगों ने किया रूट्स एंड नेटवर्क्स वाला भी किया, और ट्रेन वाला भी किया. सबने नहीं किया, बट वो थोड़ा सा आई थिंक दैट वाज सम लाइक यू नो बिट ऑफ टाइम टेकिंग, राइट? सो एलआरडीआई आई थिंक वी हैवंट इसने एक मिनट, सॉरी, नो सर. नहीं, मैं सईद से बोल. सईद, तूने कौन सा किया सेट? जी मैंने भी वही किया, वो 2 के आप जो बोल रहे हैं. जो पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूशन था 1 2 3 और टैप्स वाला. बढ़िया. और थर्ड सेट वाज इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक ग्राफ आया था, राइट? बढ़िया. यही करके सारे यही करके हैं. सागर भी यही करके है, नेतू भी यही करके है ना, तीनों. सर नहीं, मैंने 2 किए थे. वो हाँ, वो स्टेप्स वाला, यस नो वाला, जो वो टैब वाला था. हाँ, और वो जो इजी वाला था, ग्राफ वाला, रेडार चार्ट वाला. सही है. ठीक है. मतलब 2.5 सेट पे आई थिंक 99 आ जाना चाहिए. तो पे ही आ जाएगा मुझे लगता है. आई थिंक तो पे आ जाएगा बेस्ड ऑन द एक्यूरेसी, आई गेस, राइट? मैंने बहुत लोग से बात की थी, वो ये भी बोल रहे थे कि 2 तो किए हैं, बट वही मेरा भी वही है कि 1 में उतना कॉन्फिडेंट नहीं है, 1.5 थोड़ा हुआ वैसे, तो वो थोड़ा है. सरप्राइज मेरे लिए डीआईएलआर में था दैट द टीटास वर टू मच. देयर वाज लाइक, मतलब 2 टीटा कितने थे? लाइक 6 क्वेश्चंस वर टीटा, राइट? ध्यान नहीं दिया. No, yeah, exactly. No, that's what I'm saying. 6 क्वेश्चन टीटा में थे. हाँ, मतलब पूरा 6 का सेट भी टीटा में था. एक पूरा सेट टीटा. हाँ, ऐसा मतलब टीटास were too much, I guess. And I think I have heard from others also. It's good you didn't pay attention to that.
बट द थिंग इज कि ऑप्शंस नहीं है आपके पास में, यू जस्ट हैव टू पुट वैल्यूज, राइट? बट ये तो आइडिया याद होगा आपको कि आपने वैल्यूज इंसर्ट करी हैं, यू हैवंट, राइट? सो या फर्स्ट सेट को मैंने वैसे ही निकाला था कि मतलब केस कम बनेंगे, टीटा है तो फिर थोड़ा वैसे दिमाग लगा के मैंने थोड़ा वैसे निकाला था वो। So at least these guys have taken the proper set selection सबका same ही more or less रहा है. हाँ. Is good. No, that is very, that is. सर आई थिंक बार ग्राफ सेट के अलावा कोई अगर एक सेट चूज करना है तो 20 to 25 मिनट्स तो लग जाएंगे आई फील, मतलब उससे कम में बहुत डिफिकल्ट है सॉल्व करना। बढ़िया बढ़िया। अच्छा क्वांट में कितने करके आए हो? नहीं, हाउ वुड यू से, हाउ डू? क्वांट में आई थिंक 13 या 14 किया हूँ, बट इट वाज ऑन द इजियर साइड, तो एटलीस्ट 15 एम तो किया था बट हुआ नहीं। क्वांट इजी लगा तेरे को एज कम्पेयर टू मॉक्स? हाँ, सिमिलर टू मॉक्स। जो मॉक्स टफर होते हैं उनसे तो थोड़ा इजियर था। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस थे काफी सारे। सो क्वांट इजी था बट वही कैलकुलेशन इंटेंसिव था काफी, अरिथमेटिक कैलकुलेशंस काफी थे। कैलकुलेटर यूज करना पड़ा कि नहीं पढ़ना पड़ा? किया था यूज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन में किया था, उसके अलावा नहीं, इसके अलावा कोई नीड नहीं थी। क्वेश्चन सर आई थिंक ये मैंने 2 फ्रेंड से पूछा, उनका भी सेम आया था कि शायद कैलकुलेटर में SQRT जो स्क्वायर रूट शायद नहीं चल रहा था। अच्छा, उन्होंने बोला था कि कुछ तो उन्होंने डाला था तो स्क्वायर रूट ऑफ ये डाला था, अब उनकी गलती कि क्या है, मेरे साथ भी हुआ था, पता नहीं, क्योंकि आगे पीछे कुछ करना पड़ता है, बट जो भी डालो वो 0 आ रहा था। अच्छा, स्क्वायर रूट कुछ भी डालो तो वो 0 आ रहा था। शुक्र है 0 आ रहा था, कुछ और आ रहा था तो फिर लोग मार्क कर देते। तो 2-3 ऐसे थे जिसमें आंसर्स बहुत, द ऑप्शंस में आंसर्स बहुत वियर्ड थे, मतलब रूट में थे, तो मैंने वो देखे ही नहीं, मैंने कहा आगे चलो अरिथमेटिक के क्वेश्चंस करो, मोस्टली वही किए, एंड 3 अलजेब्रा के क्वेश्चंस इजी थे वो कर लिए थे। ज्योमेट्री का टाइम मिला नहीं है आई वुड से, बिकॉज टाइम टेकिंग था, आई थिंक पेपर लेंथी था, अरिथमेटिक के क्वेश्चंस काफी ज्यादा कैलकुलेशंस थी, तो उसमें 3-4 मिनट लग रहे थे एक एक क्वेश्चन में। सही तेरा, सही को इजी लगा क्वांट? सही कौन से वाले इजी थे? कोई स्टैंडर्ड सवाल थे मतलब क्वांट के एकदम, मतलब ये तो देखा हुआ है किताब का टाइप्स? एक स्टॉक्स वाला था कुछ, नहीं बोलो एक स्टॉक्स वाला क्वेश्चन था सर, और शायद से एक उसका मिक्सचर एलिगेशन का एक इजी क्वेश्चन था, एंड आई थिंक एक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन था, इजी था, 3 डिस्टिंक्ट पेयर्स बनाने थे, वो इजी था, उसमें 1-1 मिनट लग रहा था, बट उसके अलावा जो क्वेश्चंस थे, जैसे एक क्वेश्चन टाइम इन वर्क का था, वो लेंथी था, एंड देन सिंपल इंटरेस्ट वगैरह लेंथी था, अरिथमेटिक इजी था बट लेंथी था। अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बोलूं तो स्टॉक्स वाला जो तुम बोल रहे हो, मुझे जितना याद है देयर वर 3 टाइप्स ऑफ स्टॉक्स। उन स्टॉक्स की प्राइस दी हुई थी, एंड 2 स्टॉक, एक स्टॉक कितना है वो भी दिया था, मतलब आई थिंक 10 स्टॉक्स इसके हैं टाइप ए के, बी सी का सम दिया था कि बी प्लस सी इतने स्टॉक्स हैं, और टोटल वैल्यू दी गई थी हमें, बस B plus C was 20, हमें बस answer I think हाँ, yes, 15 ऐसा कुछ था। 15 था, यस यू आर राइट। So 15 was the answer. एक दो सवाल थोड़ी ट्रिक था बीच में, एज इन आई रिमेम्बर अ क्वेश्चन, वहाँ पे स्टेप फंक्शन यूज किया था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू एक्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर होल स्क्वायर। तो उसमें वो जो पूरा सेट था उसका एक सबसेट वाज द आंसर टू दैट क्वेश्चन। ही वाज नॉट आस्किंग द होल सॉल्यूशन टू द क्वेश्चन बट अ सबसेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सबसेट ऑफ द एक्चुअल आंसर, वो पूछ रहा था। ओके, तो वो 1-2 जगह आई थिंक कहीं लोग मार खा सकते हैं। तो राउंड 1 राउंड 2 वाली स्ट्रेटजी तो काफी काम करी, आई मीन 5 या 6 क्वेश्चंस थे जो इजी थे काफी। आई फेल्ट सर कि क्या था ना, वो थोड़े ब्लॉक में कुछ क्वेश्चंस थे कि एक ब्लॉक में आपको मिल रहे हैं राउंड 1 टाइप के, राउंड 1 या राउंड 2 टाइप के आपको मिल रहे हैं, तो मेरा कुछ ऐसा हुआ था कि पहले 15 मिनट में मेरे कुछ ऐसे 6 कुछ हो गए थे, और 5 या 6 कुछ मेरे हुए थे, फिर बीच में मैं थोड़ा फंस गया था, फिर लास्ट में फिर मेरे को और मिले, तो फिर मैं लास्ट में मैंने टोटल 12 किए, बट वही था, थोड़ा सा वो भी कैरी फॉरवर्ड हुआ था, DLR का मोमेंटम थोड़ा कैरी फॉरवर्ड होता, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस ऊपर नीचे था कि सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, बट क्वांट्स मोरलेस की सिटर्स थे, आपको मिलेंगे, आपको जैसे 6-7 जो सिटर बोलते हैं वो मिलेंगे, आपको मिलेंगे, उसके बाद अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा कुछ करो, तो
एक क्वेश्चन को आप क्रैक ओपन करके फिर वो सिंपल एकदम हो जाता है, फिर आप उसको ऐसे सॉल्व कर लो, तो आप नेट आप 10-11 अटेम्प्ट मेरे हिसाब से आप निकाल सकते हो अगर आपने थोड़ा मेहनत किया है तो। बड़े एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का भी क्वेश्चन था टाइम स्पीड डिस्टेंस के साथ मिक्स करके, वो भी था बट थोड़ा लेंथी था आई वुड से, एंड मतलब उसमें आई थिंक कुछ 30 60 90 आया था आई गेस, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, यही था आई थिंक टाइम आई गेस, हाँ 30 60 90 था, 3 आवर्स था, हाँ वो इजी था बट वही लेंथी था। उसका आंसर आई थिंक 1,12,000 कुछ आया था आई गेस, एग्जैक्टली याद नहीं है मुझे, बट पर मारा मारी वाला क्वांट नहीं था, मतलब जेई क्वांट नहीं था। 2023 क्वांट तो नहीं था, 2023 से तो इजी था, मतलब 24 से डिफिकल्ट था, 23 से इजी था आई वुड से, 22 के आसपास शायद, हाँ 22 के आसपास कह सकते हैं। बढ़िया बढ़िया, चलो गुड है यार। आई थिंक ठीक है पेपर, मतलब पेपर ऐसे ही होता है यार, उस दिन पे टफ ही लगता है, सबको लगता है, करके आते हैं, बट जब पता ही है कि आई थिंक वही 99 मार्क्स पे 99 जाना चाहिए, कट ऑफ मोर और लेस लास्ट ईयर रहेगा। डीएलआर भी लास्ट ईयर 2 डीएलआर के सेट वर वेरी इजी, वर लाइक करने ही करने हैं वो, बट पंगा है ना वो, अब तुम्हारा सेट सिलेक्शन सही हो गया, तीनों का सही है, तीनों ने सही सही सेट कर लिए, अब जो इजी भी आए पेपर में बट वो सेट सिलेक्शन सबका नहीं हो पाता ना, तो दैट्स अ डील ब्रेकर। मतलब कई स्टूडेंट्स ऐसे भी रहे होंगे जो एक सेट में फंस गए, देन आफ्टर दूसरे सेट में गए उसने भी फंसा दिया, and they might have chosen a wrong set. So but yeah, set selection I think classes sir, if someone has not solved spider graph before, they will find it quite weird that graph. स्पाइडर ग्राफ तो मॉक में था भर भर के यार हर तरह। I think प्रांतिक सर आपने भी शायद लास्ट क्लास में बताया। हाँ even I made a video for Anukul 2 days before। Correct, it's there on YouTube. and PYQs में भी हमने उनको बताया था, जिसमें एक क्वेश्चन है कि एक कंपनी जो है वो 6 पैरामीटर्स पे जज होती है, रडार चार्ट का एक क्वेश्चन है, एंड वो पैरामीटर्स के बेसिस पे हम तरीके से कस्टमर रिलायबिलिटी कॉस्ट ऑल दिस पैरामीटर वो PYQs में भी बताया हुआ है। करेक्ट, चलो बढ़िया, आई थिंक जिसने पुराने पेपर वगैरह सॉल्व किए तो बढ़िया। हाँ बोलो सर। आई थिंक 99 परसेंटाइल मोर और लेस सेम रहेगा, आई गेस 5-6 मार्क्स कम हो सकता है, उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है, मतलब लास्ट ईयर 96 पे था, इस साल आई थिंक 90 और 88 अर्ली 90 हाई 80 शायद हो सकता है, या आई गेस LRTI का थोड़ा सा कट ऑफ लाइक नीचे आ सकता है, एंड बिकॉज़ लास्ट ईयर आई फील आई रिमेंबर्ड स्लॉट 1 में जब बच्चे आए थे, सो कैंडलस्टिक ऑलमोस्ट सबने किया था, राइट, एंड पीपल आर कॉन्फिडेंट, पीपल आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट 2 सेट्स, राइट, right now people are not confident about 2 sets, right? People like कि अगर मेरा accuracy अच्छा है, I'm able to make it then only, so I feel that थोड़ा जाएगा नीचे की तरफ, 5-6 मार्क्स, उससे ज्यादा I don't think so, because ARC भी बहुत easy आया, मतलब compared to last year। चलो अच्छा है, ठीक है, and quant would be similar to last year? नहीं सर, लास्ट ईयर लास्ट ईयर थोड़ा ज्यादा इजी था मेरे हिसाब से, हाँ लास्ट ईयर थोड़ा ज्यादा इजी था, लास्ट ईयर सॉल्व हो रहा था क्वांट, मैं अभी जा रहा हूँ स्लॉट 3 देखता हूँ, अगर आज गया तो लास्ट ईयर तो मैंने क्वांट पूरा सॉल्व कर लिया, मैंने बोला ये तो भाई पेपर ही नहीं है, मतलब स्टैंडर्ड था लास्ट ईयर, आउट ऑफ द बुक पेपर था ऐसा। चलो बढ़िया, बाकी ज्योमेट्री डायरेक्ट था, मॉडर्न मैथ्स वगैरह डायरेक्ट, वो टॉपिंग वाला क्वेश्चन क्या, सबवे वाला टॉपिंग वाला, पीएनसी प्रोबेबिलिटी वाला, बर्गर वो सैंडविच छोड़ दिया था मैंने वो, मतलब मैंने वो लास्ट में मैं कर रहा था, फिर मैंने देखा कि एक केस के अंदर और एक केस बनता, तो फिर मैंने वो छोड़ के मैं दूसरे वाले पे चला गया। अच्छा, वो सीधे मतलब मल्टीप्लिकेशन था आई गेस, 880 था ना उसका आंसर आई गेस। हाँ ऐसे वो वही था, वो बाद में क्लिक किया मेरे को, बट फिर very subway sort of question। You go and order, you choose the bread, you choose the toppings। और एक टेबल चेयर वाला क्वेश्चन भी बहुत इजी था, बस थोड़ा सा वो 12 चेयर तेरा 21,000 था आई थिंक उसका आंसर, याद नहीं है क्वेश्चंस के आंसर्स भी कभी-कभी याद नहीं मेरे को उठा। कहाँ था टेबल चेयर वाला, वो जो 12 प्रॉफिट एंड लॉस का था कि इतने चेयर का प्राइस पे इतना डिस्काउंट, 12 चेयर का जो क्या कुछ प्राइस है, ऐसा कुछ डिस्काउंट है, ऐसा कुछ था वो 13 चेयर दिया था प्राइस कि कितना होगा, every chair cost price is 100, the shopkeeper is selling 13 chairs but at a price of 12 chairs। yes उसका वो मार्कअप परसेंटेज पूछ रहा था, ओवरऑल प्रॉफिट दिया था उसने। हाँ, सो आई थिंक क्वेश्चंस जो हमको ओवर द टॉप याद है, आई थिंक हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हाँ डेफिनेटली, जैसे कि आई रिमेंबर x plus y is less than 14, yes, one was x plus y is less than 14
and x y is Y is greater than equal to 3, X is greater than Y. yeah तो आंसर 4 था आई थिंक, 4 पेयर्स बन रहे थे. नहीं ज्यादा थे. नहीं आई थिंक पता नहीं मे बी आई थिंक हाँ. 16 के आसपास थे आई थिंक ऐसे कुछ आ रहा था बट 4 तो नहीं है ये आसपास तो नहीं होंगे बिकॉज इट वाज ऑर्डर्ड पेयर और बताया गया था कि x is greater than y. X greater than Y greater than It will 30. be all the values less than 14 ना, not only 14. Yeah, so I think let's actually just write the questions. Answers I understand वो होता है discussion वो बात का है. But x plus y is greater than 14, right? Is less than 14? Less than 14 it was, Less right? than 14. X Combinations हो x जाएंगे. is greater than y greater than equal to 3. Equal to 3, yes. So इसमें हमको निकालने थे कि कितने integral pair of solutions इनके बन सकते हैं, right? With this condition, this was proper inequality. कहाँ पे class? मुझे वाला क्वेश्चन होगा से कर दो. X greater than Y greater than equal to 3 था I guess condition. एक क्या ये condition थी, right? And then हाँ they ये थी और x greater than y. oh yes greater than y and then greater than equal to 3, right? Yes हाँ. yes. हाँ आई थिंक इसका आंसर 16 आ रहा था करेक्ट. हाँ मैंने बोला वैसे but सॉरी मजाक में सही आंसर. अरे नहीं दोनों का सही और ठीक है ओके. वन वाज दिस मुझे तो 0 आया था. तो बेसिकली इसका आंसर 0 था. आई टेल यू व्हाई. इसमें बेसिकली x की वैल्यू जो भी निकलती है उनको पुट करोगे तो log सेटिस्फाई नहीं हो रहा है. वो अगर आपने कैच नहीं किया देन यू आर स्क्रूड. सो इसके आंसर लोगों ने 2 भी लिखे हैं, राइट? नहीं और इसमें इनफाइनाइट भी लिखा है. इनफाइनाइट तब लिखा है जब आपने साइन चेंज नहीं किया होगा या आपने रेंज बाहर ले ली होगी, करेक्ट? मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है, बाकी देखते हैं. सही है आई थिंक. हाँ आई थिंक 0. क्वेश्चन क्या बोलता हूँ, अभी आंसर नहीं डिस्कस कर. हाँ ठीक है, नहीं करते खाली क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. ठीक है. वो मैंने किया भी नहीं था, सैयद ने बोला मैंने पूरा. ठीक है सर एक वो उसका मिक्सचर ये अब तो हो गया है भाई. हाँ? क्या है मिक्सचर एलिगेशन एक इजी क्वेश्चन आया था जिसका आंसर आई थिंक 27 नहीं आंसर करना ही नहीं है ना डिस्कस. अच्छा ठीक है. So yes, there was one mixture allegation and then there was you remember any question? वो mixture allegation ठीक है, but you remember the entire statement, that is important. एक तो सर अभी ये था, अभी जो सैयद भी बोल रहा था ना, वो B plus C equal to 20 वाला shares bonds and क्या TSD वाला क्वेश्चन याद है सर? Sorry? TSD वाला क्वेश्चन याद है? हाँ बताइए. TSD में ये था कि आई थिंक फर्स्ट 30 मिनट्स में 960 मीटर्स पर मिनट ट्रैवल किया था एंड जो डिस्टेंस था सॉरी स्पीड था और टाइम था वो दोनों आई थिंक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में था एंड टोटल डिस्टेंस वाज 224 किलोमीटर्स इन 3 आवर्स. Total distance was 224 kilometers 224 kilometers. Okay. in 3 hours. Okay. And first 30 minutes में 960 मीटर पर मिनट ट्रैवल किया था फर्स्ट 30 मिनट्स में. 960 मीटर्स पर मिनट. ये लेंदी था बट इजी था आई वुड से. मतलब 1,12,000 इसका कुछ आंसर आ रहा था. थर्ड पार्ट में पूछा था कि आंसर क्या है. थर्ड जो जैसे फर्स्ट 30 मिनट्स में आई थिंक 29.28 किलोमीटर ट्रैवल किया था अगर 960 को हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे. देन सेकंड पार्ट में स्पीड बढ़ गई और उसी प्रोपोर्शन से आई थिंक वो भी हो रहा था टाइम. और तीनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में थे. तो थर्ड पार्ट का डिस्टेंस पूछा था. सो ये थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट था बट 3-4 मिनट में हो गया था सॉल्व. मतलब इतना मुश्किल नहीं था. हाँ. You remember this question which I'm writing? ये थे x एक्सिस पे एक पॉइंट दिया था, वो जो डायगोनल आ रहा है एंड वो पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो निकालना था. Okay. Find the coordinate. x कोऑर्डिनेट ऑफ X लिखा है ना मैंने. हाँ ठीक. Yes, find the x coordinate. where Y is equal to 0. Right? Y is equal to 0. मैं डिस्कस नहीं कर रहा, मैं बस आंसर लिख रहा हूँ साइड में. ओके, डोंट वरी. क्वेश्चन 5. Mixture allegation but Mixture allegation, yes. You remember the question?
तो बहुत लंबा क्वेश्चन 200 ml या लीटर कुछ तो था हाँ, of 200 लीटर हाँ याद एसिड वाज 30%. 30% एसिड वाज हाँ 30%. वाटर एसिड 30% था. देन दोनों में काफी 10-15% का ऊपर नीचे इंक्रीज डिक्रीज हुआ और फिर एट आई थिंक 53 पॉइंट समथिंग आ गया था लास्ट में एसिड. 200 लीटर हाँ. 30%. 3.5 आया था सर. 27 जितना भी था. क्या था आंसर? 27 था. 26.5 आया था क्या आंसर? समथिंग लाइक दैट. हाँ 20 हाँ. Okay, so this was there, and then you remember more questions. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्या था? mod x स्क्वायर. ग्रेटेस्ट इंटीजर. Yeah. box x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर का बॉक्स. Correct. उसका आंसर you remember? नहीं मैंने किया नहीं. उसका आंसर प्रॉब्लम ये थी कि he was not asking the whole answer, he was asking only the subset of answer. तो वो तुम्हें क्वेश्चन मतलब वो ऑप्शंस सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि कौन सा लाई करता है. Yeah, and I think we also talked about that question, huh? Which one? That stocks wala, right? Stocks वाला. So 3 types of stocks were there, correct? Yes. 3 types of stocks. Okay. B plus C was given as 20, right? एंड कुछ स्टॉक का वैल्यू दिया हुआ था. तीनों स्टॉक का वैल्यू अमाउंट एंड वैल्यू फाइंड भी. हाँ Correct. और सर एक क्वेश्चन था जिसमें कुछ नंबर ऑफ बॉयज थे नंबर ऑफ गर्ल्स थे एंड बॉयज का 60% से डिक्रीज कर दिया था गर्ल्स का 40% से नंबर डिक्रीज कर दिया था. Yes. बॉयज वाज 10 एटलीस्ट मतलब मोर देन 10 ऐसा कुछ था. बॉयज वाज मोर नहीं देन गर्ल्स वर 8 मोर देन बॉयज आई थिंक. वो सेकंड पार्ट में था. फर्स्ट पार्ट में boys boys more than were boys after interchanging. हाँ. But boys were more than 10 फर्स्ट वो था. इसका आंसर 80 आया था आई थिंक 80. मुझे 60 और 70 आया था. टोटल पूछा था तो मैं 130 लिख के आया. पता नहीं 80 इसमें जो मिनिमम पूछा था उन्होंने कि मिनिमम कितना हो सकता है. मिनिमम हाँ मिनिमम 80 कैसा आया था? हाँ 80 था मिनिमम 80 आया था. तो 50 and कौन से दो 50 and 30? यस अगर भी कैलकुलेट कर लोगे. पता नहीं याद नहीं मेरे सोच रहा को. हूँ. या 50 लेस देन 60% कर दो 36 24 हो गया और वो 30 हो गया. I am bad with Mac. इसका साइज कहाँ से रिड्यूस होता है टेक्स्ट का? या छोड़ो आंसर्स याद नहीं रहते भी बट कैलकुलेशन बार याद नहीं आ रहा सर. हाँ ये क्वेश्चन था गर्ल्स बॉयज वाला जिसमें इजी था ये. ठीक है, इट्स फाइन. नेक्स्ट. सबवे वाला लिखे क्या? एक क्वेश्चन था सर मुझे वैल्यूज याद नहीं है बट दो इक्वेशंस थी 2a + 3b + 3c और दूसरी इक्वेशन थी 6a + 6b ऐसा कुछ करके था. बेसिकली आपको मल्टीप्लाई करके कुछ माइनस करके हाँ भाई. नहीं आई थिंक वैसे वो सॉल्व नहीं होगा. आई थिंक यू शुड हैव टू बी और सी रेशियो में था. बी एंड सी वर 6 इन अपर मतलब एक इक्वेशन में. दूसरे इक्वेशन में दे वर 3 में थे. राइट you have to take a plus b as one term and then solve. एक सैंडविचेस वाला था, राइट? हाँ सबवे वो एंड सॉसेज, वो प्रोबेबिलिटी वाला वो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया सर. वो बात के लिए छोड़ दिया था बट फिर पता नहीं देख लेंगे. और फिर सर एक क्वेश्चन था रेशियो प्रोपोर्शन का जिसमें आई थिंक जिसका आंसर 99 था आई गेस. उसमें 13:9 था रेशियो. फिर उसके बाद कुछ नंबर ऐड किया फिर उससे 19:14 हुआ था. हाँ 19:14 हो गया था रेशियो. कैलकुलेशन काफी थी इस क्वेश्चन में बट इजी था. इसका आंसर आई थिंक 99 था मुझे याद है. ओके, fair enough. All right, so 10 questions and then next up. 10 क्वेश्चन भी याद है हमको बहुत है. 50% of the way. सर अटेम्प्ट ही 12 किए तो याद वही याद है कि नहीं. 15 अटेम्प्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट था सर आई फील. 15 अटेम्प्ट करना इज स्लाइटली डिफिकल्ट. वो थोड़ा मोमेंटम होता ना अच्छा तो मतलब एक रिदम अच्छा होता. डीएलआर से तो शायद हो जाता 14 डीएलआर
वो DLR थोड़ा शेकी हो गया वहाँ पे। और DLR में भी जो बार चार्ट वाला जो सेट था सर वो इजी जरूर था बट थोड़ा टाइम ले लिया था उसने बिकॉज एक तो दोनों चीजों को कंबाइन करना था एंड फिर वैल्यूज निकालनी थी। राइट। तो बार चार्ट का तो मुझे तो ऐसा लगा कि अगर तुम्हें इंपोर्ट एक्सपोर्ट में थोड़ा मतलब इधर उधर कर दोगे तो गलत हो जाएगा। हल्का सा टर्मिनोलॉजी उसकी बहुत थी। Terminologies should have been clear. It was more about terminologies. Right, once you're able to get the data from radar, which was actually pretty simpler, और या फिर आप वही focus करो जिसका आपको data चाहिए. You might not need to create the entire table. You have bar graphs, but basically terminologies were the trickier thing in this, right? Import, export, tariffs, the trade deficit, all these things were very important, right? But ठीक है, I think understood. तो आई थिंक मार्क्स वाइज तो सबसे ज्यादा VRC में ही आएंगे मतलब वो तो वो सर बताएंगे। सुन रहा हूँ। सर 10 क्वेश्चंस तो याद है हम लोग को। 10 क्वेश्चन याद है, वेरी गुड। ठीक हो रहे हैं इनके कि नहीं? हो रहे हैं सर, इनके चैंपियन है सब। वेरी गुड। सही है, तेरे ठीक हो रहे हैं? शायद एक गलत दिख रहा है मुझे, बट मुझे भी एक गलत दिख रहा है। मैंने आई थिंक ये ग्रेटर देन वाला गलत कर दिया है। ठीक है। मेरा वही दो साहिल सर बता रहे थे लॉग वाला, वो शायद मैंने 2 किया जहाँ तक मुझे याद है। यार वो अब देखो वो यार, सर लास्ट सेकंड पे अटेम्प्ट किया था मैंने, तो मैंने चेक नहीं किया, फिर मैंने कर दिया। एक मेरे को और क्वेश्चन याद है। आई रिमेंबर वन मोर क्वेश्चन wherein there was a set given of odd numbers and they asked कि k की क्या वैल्यू होगी कि पहला सेट दूसरे सेट से ज्यादा हो या कम। बड़ा क्वेश्चन। हाँ वो इक्वल होगा। डिस्क्रिमिनेंट का कुछ था शायद। आई रिमेंबर वन मोर क्वेश्चन सर, मेरे को क्वेश्चन याद ही जा रहे हैं, सॉरी। मिनिमम मैक्सिमम, हाँ। मैंने 19 अटेम्प्ट किए तो याद है। ठीक है। सो तेरा अटेम्प्ट कितना है निहित? 12। 12। ओके, ये जो तेरा तो मेरा ही 12 अटेम्प्ट है क्वांट्स में। 12, ठीक है। सागर तेरा 12? तो सर मेरा मैं 12। You remember this question, guys? ये वाला AK is equal to 3 raised to k. हाँ कुछ A1 पावर 1 से लेके पावर A1 into A2 into A3 so on up to करते गए 20 तक। A20 तक and उसका स्क्वायर था is हाँ, equal and 21 से लेके 21 प्लस m तक शायद। correct. This तो आई was थिंक जो इंसान से अर्थमेटिक भी पढ़ ले उसका आराम से 95% एरर तो आ ही जाएगा मतलब। there was a question on rhombus also. हाँ सर बहुत इजी था। लेंस दी थी वो डायगोनल इक्वेशन वाला से निकल गया था क्या, कुछ तो डिफरेंस मांगा था Difference of the length डायगोनल्स का। I think length, right? सर एरिया दिया था, लेंस दी थी और डायगोनल्स की लेंथ। इसका I think आंसर 60 था, मुझे ऐसा लग रहा है। एक क्वेश्चन वो था कि आपको ऑड नंबर्स दिए थे 1 3 5 हाँ 7। उसका आंसर 41 था। 41 था उसका आंसर। यस, A की वैल्यू निकालनी थी आपको। 41 था ना सर? हाँ वो क्या ऑड नंबर्स का बेसिकली ये दिया था नीचे और ऊपर सम सेम आएगा। आई थिंक 1 से लेके 57 तक नंबर्स दिए थे ऑड में और मिड टर्म बताना था जिसके पीछे और इसके आगे का सम इक्वल है। यस 41 था उसका आंसर। First set sum becomes greater than something like this, right? तो 10-12 क्वेश्चन तो डूएबल थे क्वांट्स में आई वुड से। मतलब सिर्फ PYQ भी लगाए हो तो भी 10-12 क्वेश्चन आराम से सही हो जाने चाहिए। सिली मिस्टेक एक दो चलो सर हो गई है एक दो, बट ठीक है। सर्कल्स विद कॉर्ड का भी क्वेश्चन था ना एक। ये मुझे समझ नहीं आ रहा। वो बोला कि कॉर्ड के बीच में दे आर सेपरेटेड बाय अ डायमीटर। हाउ कैन अ कॉर्ड बी सेपरेटेड बाय अ डायमीटर? मतलब शायद दो साइड पे थे शायद, मैंने किया नहीं वो, बट मुझे ये लगा कि शायद दो सेंटर के दो साइड पे होंगे। मेरे से लास्ट क्वेश्चन था ये, इसलिए मेरे को याद है, बस पढ़ा था। ठीक है। एक कॉर्ड वाला क्वेश्चन मॉक में भी था, आई थिंक मॉक नंबर सर मॉक में भी था, रॉम्बस वाला क्वेश्चन भी था मॉक में। ये जो हम सीरीज बना रहे हैं 3 रेज्ड पर k वाली, ये भी मॉक में था कि हम किस तरीके से सीरीज में पावर्स को ऐड करते हैं उसके बाद में। और इसमें ये बन रहा था, इसमें इफ यू रिमेंबर सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स बन रहा था, राइट? सो वैसा कुछ भी था इसमें। सो ये वाला क्वेश्चन था एंड आई विल टेल यू मोर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पैरेललोग्राम 2 बार रिपीट हुआ है या 2 से 3 बार रिपीट हुआ है ये पिछले सालों में, जहाँ पे आप एक कोऑर्डिनेट निकालते हैं, आप ये मेक श्योर करते हैं कि डायगोनल्स का मिड पॉइंट जो है वो सेम हो, राइट? एंड वहाँ से फिर आप चाहे स्लोप निकाल के करिए या कैसे भी कर लीजिए, यू कैन डू दैट, बट दिस इज समथिंग व्हिच हैज रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स। 2022 या 2021 में Yes, sir. पैरेललोग्राम वाला।
And yeah, I think fair enough ऐसे questions तो थे. 9-10 क्वेश्चन तो होंगे अर्थमेटिक के, मुझे लगता है. टाइम एंड वर्क का भी था ना एक तो 24-21 डेज ऐसा कुछ हाँ, था. वो उनके इनकम्स भी दिए हुए थे, हाँ, डेज दिया था, इनकम्स दिए थे कितना कितना था, एंड उसके हिसाब से कुछ निकालना था शायद. But it was not direct. It was मतलब हाँ, it was not direct. it was series, no? Something like that. AP or something progression? नहीं था. एक और था, तीन वो बंदे था. बहुत टाइम से डिस्टेंस वाला था प्रोग्राम. हाँ, correct. हाँ, वो टाइम सीरीज. ठीक है. 24, 15 और 21 डेज में 3 लोग वर्क करते हैं एंड दे टेक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी. जो 15 डेज में करता है ही टेक्स द लोएस्ट अमाउंट ऑफ मनी, बट दूसरे जो दो हैं वो ज्यादा लेते हैं बट इक्वल लेते हैं. दे वांटेड टू फिनिश द वर्क इन 10 डेज Yeah. और पूछ रहे थे कि मिनिमम वैल्यू कितनी होगी. अब इन मतलब मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ तो ग्रीडी अप्रोच लगाया था मैं कि सबसे ज्यादा काम सबसे कम पैसे वाले को दूंगा, बट ही इज डूइंग इट ओनली इन 15 डेज. और वो ये भी बोले थे कि अगर फ्रैक्शन ऑफ द डे भी काम कर रहे हो तो पूरे दिन का पैसा देना पड़ेगा. तो उसमें पता नहीं केस बन रहे थे या मतलब कुछ लॉजिकल लगाना पड़ रहा था तो छोड़ दिया. कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज. In 10 days, yeah. Yes, sir. जो सबसे तेज करता है वो 15 डेज में कर रहा था. Yes. आई थिंक अच्छा बच्चा अराउंड वही 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा और आई थिंक 10 ठीक होंगे. 99 कोई तो इतना होना चाहिए. But we remember 15 questions or वेरी गुड, 22 में से. नॉट बैड. और- ये क्या है, जीएफ क्या है? Greatest integer function. अच्छा, इजी था. थोड़ा सा I think कैसा लगा आपको GIF? सर अटेम्प्ट नहीं किया. सही है, आपने किया था? नहीं. हाँ, वो पूरा सेट निकाल के आपको ऑप्शंस टैली करके सब ऑप्शंस में वो बोले थे कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज अ सबसेट ऑफ द एक्चुअल आंसर. Correct. वो हर ऑप्शन देख के सही सबसेट निकालना था. तो स्लाइटली लेंदी बट हो गया. बढ़िया. कौन से फिर करवा मैं ये मॉक वाली इसी बात पे सर अगर हमारे 99 बनते हैं हम तीनों के तो इंटरव्यू प्रिपरेशन के टाइम पे डिस्काउंट चाहिए सर. अरे यार तू क्या छोटी बात कर दी तूने. अरे यार क्या डिस्काउंट है, तुम यू आर पार्ट ऑफ द कैट किंग फैमिली, डोंट वरी अबाउट इट. तुम कॉल लेके आओ, कन्वर्ट करना हमारा काम है, ठीक है. और कहीं ना कहीं का तो आ ही जाए. बस तू जिस कॉलेज का कॉल लेके आएगा उस कॉलेज का सीनियर तेरे को असाइन कर दूंगा. दे विल बी देयर विद यू फॉरएवर. प्रांतिक सर आम लखनऊ तो जुड़े भी हुए हैं कॉल के ऊपर, और क्या चाहिए. सर आपको कट ऑफ क्या लग रही है, मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में? यार ओवरऑल देखो, वर्बल इज स्लाइटली ऑन द इजियर साइड, नॉट दैट डिफिकल्ट. ओवरऑल ऐसे बोलना आसान है. इजी डेफिनेटली बाय डेफिनेशन ऑफ इजी, मैं इजी ध्यान से बोलता हूँ बिकॉज इजी इज नॉट इजी. जिसने पढ़ा हुआ है उसके लिए है, राइट. एंड आई थिंक वर्बल मोरलेस वही 11-12 क्वेश्चन ठीक होंगे तो 98 टच हो जाएगा, और 15 क्वेश्चन ठीक होंगे जिसके वो 99 क्रॉस करेगा वर्बल में. बिकॉज ये साउथ इंडियंस में बैंगलोर वाले फाड़ देते हैं वर्बल एबिलिटी, और ऐसा पेपर तो किल करके आते हैं वो. एंड ओवरऑल टॉपर वही 15-16 क्वेश्चन ठीक करके 45 के आसपास, 40 पे 99.xx आना शुरू हो जाएगा, पक्की बात है, बेस्ड ऑन माय डिस्कशन एंड माय एनालिसिस. आई थिंक DLR 30 मैंने खुद पेपर किल नहीं किया था भाई, जितना तुमने स्लॉट 1 का करवा दिया है. सर आई थिंक DLR 30 से नीचे जा सकता है. 99 27 28 आएगा. DLR जिसके 2 सेट सॉल्व हो गए तो आई थिंक ही शुड बी टचिंग. आई थिंक 27 28 जाएगा 99, मुझे जो लगता है. डिपेंड करता है बाकी लोग सिलेक्शन क्या करके आते. तुम लोग क्वांट्स भी आप मान लो कि 10-11 क्वेश्चन पे चले जाएगा अगर 100% एक्यूरेसी है. 11 क्वेश्चंस मान लीजिए, हाफ 50% ऑफ द पेपर क्वांट्स. आई थिंक पिछली बार 99 स्कोर पे, जो मैं बोलता हूँ ना 11 वाज 99, एंड 2023 में इट वाज 999, which means 27 questions and 81 marks पे 99. That was 2023. तो